So student, let's start with the concept. Today topic we will discuss the quantifiers. So normally we are using the quantifier, but we are not aware they are known as the quantifier. You may have seen this symbol earlier also, this symbol, and this is a one of the quantifier, and I also have seen this another symbol. It's very useful. It is this one, correct? You know that this is there exist, and this is for every. So all these symbols are quantifier. Now let's read the technical definition. Pn is any proposition. U is the U over the universe. Means we are taking n from the U. What is the truth set? Truth set is this of Pn. But it is not is equal to 5. Means not is equal to 5 मतलब इसमें कोई ना कोई तो ऐसा n होगा U में से जो इसको satisfy करेगा. Then we say that there exists n in U such that Pn is true. अब इसी को लिखने का है कि मतलब अगर ये 5 नहीं है इसका मतलब there exists an n in the U such that Pn is true. So we abbreviate this sentence as there exists n such that Pn is true. इसको लिखते ऐसे हैं. ये जो सारी वर्डिंग हमने लिखी है ना उसको लिखने का ये टेक्निकल वे है. अंडरस्टैंड कि ये जो सिंबल हमने लिखा है ये वाला, दिस इज नोन एज एजेंशियल क्वांटिफायर, जिसको हम देयर एग्जिस्टेंस से प्लेस किया. इट्स टेक्निकल नेम इज एसेंशियल एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो इस क्वांटिफायर को यू हैव टू मेमोराइज दिस सिंबल एंड यू मस्ट be aware of the name of this means quantifier and how you will use this is another. So we have very good example is there, like what is the meaning of this, like there exists a k in z such that 5k is equal to 100. Means there exists a case such that 100 is a multiple of 5, which is true. क्योंकि कोई ना कोई तो इंटीजर होगा. कौन सा इंटीजर होगा? आप 20 ले लो k की वैल्यू, it will satisfy you. Okay, so there exists, ये इंटीजर है, there exists x in rational number. क्या हो ये set of rational number. Okay, in rational number such that x square minus 3 is equal to 0. अब ये false है क्योंकि x square minus 3 is equal to 0 जो है, if you will take x is square is equal to 3 and you will get x is equal to plus minus root 3. और ना तो प्लस रूट 3 रैशनल नंबर है ना माइनस रूट 3 रैशनल नंबर है. अगर आप इस क्यों को t से रिप्लेस कर दो, t होता है सेट ऑफ इररेशनल नंबर, देन इट विल बी ट्रू. So they have explained this is false as the this is over this is empty. तो आप इसको लिखोगे कैसे? अब ये जो देयर एग्जिस्ट है उसके ऊपर ऐसे आप लाइन लगा दो, इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट. सो does not exist any x from q such that this is satisfied. You can write like this also. Now move to the next quantifier. It is a universal quantifier. What is this? If Pn is a proposition over U and agar for all n belongs to U इसको सेटिस्फाई करें तो इसका जो ट्रुथ सेट होगा वो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही हो जाएगा, ये यू ही हो जाएगा. सो हम क्या करेंगे? फॉर ऑल एन इन यू सच दैट पी एन इज ट्रू, we abbreviate this as for every n from given u, here u will be there, such that Pn is true. This is known as the universal quantifier. Understand? Now move this. See,
there exists a x px means such that px means there exists a such that px hold for every x px hold. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉलन डालकर, ठीक है, यहाँ कॉमा डाल रहे थे, कॉलन डाल के भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल x डिनोट द रियल नंबर, देयर इज x सच दैट x के इज इक्वल टू 9 इज ट्रू। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 3 भी ले सकते हो, -3 भी ले सकते हो, ठीक है जी। तो बस सिमिलरली वी हैव सम अदर एग्जांपल्स। नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर, नेगेशन मतलब नॉट फॉर एवरी। अगर मान लो u के अंदर सारे n को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे u से, तो आप नॉट लिख दोगे आगे, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको इक्वलेंस बताया हुआ है कि अगर आपने बोलना है कि देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू u सच दैट pn इज नॉट सेटिस्फाई, इसका मतलब अगर सारे n सेटिस्फाई नहीं कर रहे, अगर सारे के सारे n सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई ना कोई n होगा जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि देयर एग्जिस्ट n सच व्हिच इज pn इज नॉट ट्रू, नॉट लिख दिया आगे उसके, ठीक है। सिमिलरली अगर बोला कि देयर एग्जिस्ट n फ्रॉम दिस नॉट एग्जिस्ट इन n सच दैट ps ट्रू, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर एवरी n pn इज नॉट ट्रू। तो these two, this is equivalent to this and this is equivalent to this, ओके। नेस्टेड क्वांटिफायर, नेस्टेड कुछ नहीं है, दोनों को इकट्ठे यूज करना है। फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट ए वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन एक्स। जो आपको उसकी एब्रीविएशन पता है, यू जस्ट replace the abbreviation with the symbol and you will understand what examiner try to explain, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जहाँ दो वेरिएबल आ जाएंगे, अब एक x के ऊपर कंडीशन लग रही है, एक y, फॉर एवरी x देयर एग्जिस्ट ए y। x कुछ भी हो सकता है, एक y जरूर होगा जिसका सम 0 होगा, हर x के लिए एक ऐसा y होगा जिसका सम 0 होगा। तो यू हैव मैनी एग्जांपल्स, ये सारी एग्जांपल्स आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रही हैं। ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर, ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर आपको पता है कि जब भी आपको ये ऑर्डर को याद रखना है, मीन्स फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई पी एक्स इज इक्वल टू फॉर एवरी वाई, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो अगर दोनों लगे हों। अगर ये भी दोनों इकट्ठे लगे हों तो इनको भी इंटरचेंज कर सकते हो। पर फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट ए वाई इज नॉट इक्वल टू, इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो यू नीड टू टेक केयर, ठीक है जी। एक होता है बाइंडिंग वेरिएबल। बाइंडिंग वेरिएबल समटाइम ऐसे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर में। द व्हेन द क्वांटिफायर यूज्ड ऑन अ वेरिएबल x, दिस द देन दिस अकरेंस ऑफ द वेरिएबल इज बाउंड, क्योंकि बाउंड कर दिया, x की वैल्यू बाउंड कर दी, डिपेंड कर दी। द अकरेंस ऑफ द वेरिएबल इज नॉट बाउंड बाय द क्वांटिफायर और सेट इज इक्वल टू पर्टिकुलर वेरिएबल वैल्यू इज फ्री। जो बाउंड नहीं है वो फ्री है। अगर मान लो फॉर एवरी हो कि कुछ भी x ले सकते हैं, वो बाइंड नहीं है, वो फ्री है। अगर हम बोलेंगे x की वैल्यू लेस देन इसकी होना चाहिए, वो बाइंड कर दिया, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। कोई कंडीशन के ऊपर लग दिया, ठीक है ना। तो ये देखो, ये सारी इलस्ट्रेशन आपने करनी है, ये एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, इससे इजीली आप यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये सारी एग्जांपल थ्रू करो, कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी हैं and you have given with the answer also. To understand, very simple to understand the theory of inference for the statement calculus, means when statement will be given and you have to prove some statement. We study the logic given by the rule of variables. Already हमें पता है कि जो इन्फ्रेंस के हमने कुछ लॉज किए हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ रीजनिंग के अंदर। तो एक चीज याद रखना, आप प्रमाइस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो किसी एक स्टेटमेंट का प्रपोजिशन का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो प्रमाइसिस को यूज करके हम कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो फॉर्मल ट्रू प्रूफ हमारा ये होता है कि जैसे यहाँ पे, हाँ, फॉर्मल प्रूफ के अंदर क्या करते हैं कि हम किसी प्रमाइसिस को लेते हैं, एक एक दो प्रमाइसिस को लेते हैं, उसके ऊपर कोई लॉ लगाते हैं
और z बनाते हैं, फिर हम वी विल यूज द थर्ड प्रमाइसिस, सारे के सारे हिस्से यूज करके हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। अब उसमें कोई अलग नहीं है, सिंपल उसकी टेक्निक उन्होंने चेंज कर दी। ये आपको समझ लगेगा यहाँ पे रूल ऑफ इन्फ्रेंस से। तो दो रूल दिए हुए उन्होंने, एक रूल दिया हुआ पी और एक था टी। व्हाट इज ए पी रूल? कहता है ए प्रमाइस में बी इंट्रोड्यूस एट एनी पॉइंट ऑफ डेरिवेशन, किसी भी एक प्रमाइस को किसी भी एक हिस्से में आप यूज कर सकते हो। दिस इज द रूल ऑफ इन्फ्रेंस। पी का मतलब ए फार्मूला एस में बी इंट्रोड्यूस इन द डेरिवेटिव डेरिवेशन, कोई आपने फार्मूला यूज करना है, लॉ यूज करना है। इफ एस इज टोटोलॉजिकली इंप्लाइड बाय एनी वन और मोर प्रोसीडिंग फार्मूलाज इन द डेरिवेशन। क्या मतलब कि अगर आप एक एस फार्मूला अप्लाई करना चाहते हो किसी भी डेरिवेशन के अंदर, वो तभी अप्लाई करोगे कि एस जो है टोटोलॉजिकली मतलब टोटोलिकली वो ट्रू हो, दैट उससे पीछे जितने आपने पीछे जो प्रोमाइसेस यूज किए हैं जहां पे लगाया उसके सभी के ऊपर वो इंप्लीमेंट होता है। ये कोई इतना टेक्निकली साउंड नहीं है। जब भी आपने फार्मूला यूज करना उसको रूल नंबर 2 बोल देते, टी बोल देते हैं। जब आपने प्रमाइस यूज करना रूल नंबर रूल पी बोल देते हैं और कुछ नहीं। जब फार्मूला लगाना है तो रूल टी, जब अपने प्रमाइस को यूज करना है तो रूल पी। ओके। और दूसरी बात, वैलिडिटी ऑफ ट्रुथ टेबल क्या होती है आपको पता ही है, सभी की बेद हैंड। अगर जितने आपके पास ये प्रमाइसेस हों, हिस्से हैं, उनको आपने प्रमाइसेस होते हैं जैसे ए टू बी, तो उनके बीच में आपने एंड ऑपरेटर यूज करना है। और उसको अगर आपने सी इज द कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बट अब उसको रूल पी और टी के हिसाब से यूज करना है, बस नथिंग एल्स। जरा आप देखो, जरा एक एग्जांपल पढ़ोगे तो आपको समझ लग जाएगी। जैसे मेरे पास ये डिमॉन्स्ट्रेट दिया हुआ आर इज ए वैलिड इन्फ्रेंस प्रमाइसेस, ये एक प्रमाइस है, ये दूसरा प्रमाइस है, ये एंड पी इज ए प्रमाइस। तीन प्रमाइस है, ठीक है, जरा ध्यान देना। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, पी इंप्लाइज क्यू, ये मैंने एक प्रमाइस लिया। तो जब आपने किसी प्रमाइस को इंट्रोड्यूस करना है तो लिख देना रूल नंबर रूल पी, वेरी सिंपल। फिर मैंने ये प्रमाइस लिया, ठीक है जी, मैंने पी लिया और आपने प्रमाइस लिया, इसका मतलब रूल पी। तो यहाँ पे भी रूल पी और रूल टी। अब आप पी इंप्लाइज क्यू के बीच में एंड लगा रहे हो और साथ में पी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमने रूल टी लगा दिया। तो देखो, अब आप थोड़ा सा, जब आप किसी के अंदर थ्योरी ऑफ इक्वलेंस के ऊपर जाओगे, आपको यहाँ पे वो रूल पता लग जाएंगे। इसी में से हमने एक यूज किया हुआ है, पी टू क्यू था ना, पी टू क्यू था, पी टू लॉ ऑफ इन्फ्रेंस इम्प्लीकेशन है ये, ठीक है। तो ऑलरेडी भी ला किया हो, तो पी इंप्लाइज क्यू है और एंड लगा देते हो पी के साथ, यू विल गेट द रिजल्ट क्यू। थ्योरी ये इम्प्लीकेशन ला है, करेक्ट। तो अगर आप इन दोनों के बीच में ऐसे एंड लगाते हो, ये बीच में एंड लगाना है बस, ठीक है जी, और कुछ नहीं। तो ये आपने ये रिजल्ट लगाया, ये रिजल्ट यूज किया है, तो यू हैव दिस रूल। आपने अब इंट्रोड्यूस किया है अपने फार्मूला, तो रूल टी किसके ऊपर लगाया, 1 और 2 के बीच में, रिजल्ट क्यू आ गया। अब मैंने क्यू एक अनदर प्रमाइस इंट्रोड्यूस किया, क्यू टू आर, प्रमाइस यूज कर लिया, तो प्रमाइस यूज किया तो रूल पी। अब मेरे पास मैंने 3 और 4 के ऊपर, ये 3 है ये 4 है, ठीक है। और आपको सेम रिजल्ट पी टू क्यू, मतलब पी के साथ रिजल्ट क्या हुआ, क्यू टू आर वही सेम, तो रूल टी अप्लाई किया तो यू आर गेटिंग आर। तो फाइनल कंक्लूजन यू आर गेटिंग आर, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन यू आर गेटिंग आर। तो दिस इज अ वे। ऑलरेडी अगर आपको सेम, यही मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ आपसे, कि यहाँ पे आप लिख देते हो प्रमाइस और यहाँ पे लिख देते हो जो आपने
जो भी जस्टिफिकेशन दी होती, जो भी फार्मूला यूज किया, और वो सारे जो लॉज हैं वो आपके ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं, ये सारे लॉ हैं। करेक्ट, करेक्ट। यही देखो अभी नीचे, इससे पहले लॉ आपने, मैं नीचे बता रहा था आपको, ठीक है। तो ये सारे के सारे लॉज हमने यूज किए हुए हैं, तो उन्हीं से हमने बनाया हुआ है ये। ओके, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। ये देखो, पी और क्यू, और पी के साथ क्यू बन रहा है, पी बन रहा है, और यहाँ पे अगर पी को पहले लेते हो पी बनता है, अगर क्यू को पहले लेते हो, इसको पहले लिखोगे तो आपका क्यू बनेगा। ठीक है, ये सारे के सारे लॉ, ये देखो, यही हमने यूज किया ना, अटैचमेंट लॉ, पी टू क्यू एंड पी रिजल्ट इज क्यू, ये डिटैचमेंट लॉ। और वही डिटैचमेंट लॉ आपको यहाँ पे दिया हुआ इस फॉर्म में, ध्यान देखो, यही डिटैचमेंट लॉ जो आपको है वो इन्फ्रेंस थ्योरी के अंदर आपको ऐसे दिया हुआ है, ये देखो। ये डिटैचमेंट लॉ आपको ऐसे दिया हुआ है, इसको बोलते हैं टेबल ऑफ इम्प्लीकेशन। जैसे आपने पी और ये पी इम्प्लाइज क्यों के, यहाँ पे कॉमा, इसके में एंड लिखना है आपको,